hold on. And a lot of people, by the way, thought that I'm pregnant. इसीलिए इतने घाई में किसी को बिना बुलाए मैंने शादी किया. Another day, he calls me up again. मैं घोड़ी पे आऊँ क्या? I was just listening. I was not speaking because the other guy was drunk. So मैंने सुन लिया उसको जो भी बोलना था और मैंने मेरा decision. Hi guys. This is Divesh. And this is Bissu. Oh. Bissu's back. So welcome to yet another Episode. from our love story series. Yay! This is going to be a very very interesting episode. इसके पहले वाले एपिसोड में हमने हमारी कुंडली की स्टोरी बताई थी कि हमारी कुंडली मैच हुई या नहीं हुई, कितने गुण हमारे मिले. So ये सारी स्टोरी हमने कवर की थी अभी तक. एंड हमने ये भी कवर किया था why did we spend our money on our wedding and did not take money from either parents. Oh यार लोन पे भी लेते लोग. So we did not even take a loan. So those two episodes are live on the page and whoever is new can catch up all the episode from our entire love story series starting from how did we meet till today. The topic that we are discussing, it's all here. So now without further ado, let's start today's topic because it is cray cray. तू क्यों क्रे हो रही है? It's drama, uninvited drama like Divesh in my life, but गजब बेइज्जती है. As किसी महान इंसान ने कहा है, शादी दो इंसानों की नहीं होती, शादी दो परिवारों की होती है. कौन है ये महान इंसान? इसको मैं चपेट मारना चाह रही हूँ. महान इंसान है. He should not be called out by his name. वरना हंसता रह जाएगा. See, ट्रॉमा को हम डील ऐसे करते हैं, हम उस पे जोक्स उड़ाते हैं, जोक्स मारते हैं, you know, so that impact is a little lesser. Do you think life is a joke? Shouldn't it be? No. No, it should be serious. तेरा क्या कुछ केमिकल लोचा हुआ क्या रे? हाँ? मेकअप खा लिया तूने? I'm looking very pretty, please. Guys, what do you like about my look? Please comment. Yeah, she's looking good. हमारा शादी डिसाइड हो चुका था 2021. We checked with a pandit. We got options for our marriage date and finally we established that 5th March 2021 is going to be the time when we are going to get married. Yeah. So now once we had decided that, बहुत सारे challenges आ गए उसके बाद. जब तुम्हारी डेट फाइनल हो जाती है शादी का, too many things happening at the same time in the same house and also lockdown चल रहा है तो everybody is just going crazy with the wedding. All of these challenges just came right like one after the other. They were coming, they were hitting us. Divesh अपने घर पे, मैं अपने घर पे. And how did we actually went past these challenges? Yeah. This entire episode is the story of our journey before we got married, before the D-Day. And it's a intercaste marriage. Inter community बोल लो, intercaste बोल लो. Sindhi family, Malayalam, Bengali family, rituals कैसे होते हैं. हमारी families पागल हो गई थी, इतनी excite हो गई थी, relatives excite हो गए थे, families were so excited कि oh my god शादी हो रही है, कैसे होगी, क्या ritual होंगे, कितने कपड़े कौन से पहनेंगे, shopping कौन सी होगी, ये सब के बारे में everything we are going to discuss. पहले बिस्सू के साइड की थोड़ी सी struggles और challenges एक बार समझ लेते हैं और उसने कैसे डील किया. That we need to understand. My family basically comes with the notion and I think it's most of the families that सबको invite करना है, सबको खुश रखना है. Usually families में ना ये last में सोचते हैं कि हमको कैसे खुश रहना है, हमारे बच्चों को कैसे खुश रहना है, हमको खुद को कैसे खुश रहना है, दुनिया बाद में देखेंगे. ये यूजुअल फैमिलीज में नहीं होता है. मैं जिन लोगों को नहीं मिली हूँ जिंदगी में, इवन दे वर ऑन द इनवाइट लिस्ट एंड आई वॉज सर्टनली नॉट ऑफ द ओपिनियन कि मुझे इतने सारे लोग चाहिए. फर्स्टली टू यू नो रीआइटरेट दैट इट वॉज अ कोविड वेडिंग. तो मतलब तुम एनीवे यू कांट हैव एन एलॉबरेट लिस्ट ऑफ पीपल कि हम सब पूरी दुनिया को बुला ले. सो वो तो वैसे भी नहीं हो सकता. आई अंडरस्टैंड वेयर दे वर कमिंग फ्रॉम कि उनकी शादी में हमने यू नो वी हैड गॉन, वी हैड गिवन आवर ब्लेसिंग्स एंड वी हैड एक प्लेट खाया है तो इट ओनली इज फेयर कि हम भी. कितना जेनेरिक डायलॉग है जो मम्मी पापा और फैमिलीज चेपती रहती है आप पे ना. हाँ. कि बेटा हमने भी तो उनकी शादी में खाया, उनको भी तो खिलाने के लिए बुलाना पड़ेगा. यार जरूरी है क्या? नहीं बुलाना है, उन्होंने बुलाया, तुम नहीं बुलाते, तुम मत बुलाओ ना. I also feel that it's every person's choice. Everything should be okay. Like everything should be acceptable in the society. It should not be कि ओ इसने तो हमको नहीं बुलाया, इसको तो खर्चा नहीं, मुझे खुद पे खर्चा करना था.
point being that the entire family wanted to bring the world to my wedding and I was not okay with it. तो सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला struggle तो Yeah. इसी बात पे हो रहा था कि इसको भी डालते invite पे, इसको भी डालते invite पे, and I was like no. It becomes very difficult to say no, but no बोल के ही you can draw that healthy boundary कि मुझे ये करना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी शादी है, मेरी ख्वाहिश है. It became very difficult for me to say no, but once I started to put down my foot is when things started to fall in place. Yeah. So that was one of the struggles. So in case if you are getting married and there are unreasonable things that is happening around you which you are not 100% in on it, have the courage to say no. Initially it will look like a lot कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, and that's okay. It's never an easy journey. Yeah. I think back and forth conversation families के साथ होगी because वो लोग एक perception से आ रहे हैं, आप एक perception से आ रहे हो, but you have to tell them that this is what I'm thinking and this is what I am going to deal with scenarios. और मुझे ये चीज से फर्क नहीं पड़ता. Though we don't like, ऐसा नहीं कि हम hate करते हैं वो relatives को, हमें उसको जानबूझकर नहीं बुलाना है. We love them, we respect them, they have our blessing, we have their blessings, but दूर से. Also I don't feel that they are wrong. Just that it's a matter of choice कि क्या करना है. दोनों different हो सकते हैं. The next struggle that I faced, I'm sorry, but I personally do not like a lot of mehndi on my hand. I know a lot of people do and it's special for them, and I know a lot of people like the fragrance and stuff, and that's good. I mean, that's good for you. Somewhere I don't like it on my hand. Thank God you don't like. Because Devesh also, not because, Devesh also doesn't like it. मैं उसको जितना भी मैं लगाऊं उसको मैं annoy करती रहती हूँ ऐसे. जब तक मेहंदी लगाती है जिस दिन, मैं तो इसके पास ही नहीं आता हूँ. मैं चली जाती हूँ पास. मैं बात करता हूँ दूर से, या मैं WhatsApp कॉल करूंगा इसको कि भाई उधर से ही. Devesh, now we are married. रूम में. हाँ, इसलिए तो तूने मैरिज के बाद मेहंदी लगाई कब है? 4 साल में तू. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. Guys, किसकी शादी है बताओ and invite us. I'm going to apply some mehendi on my hand. ये तो मतलब अभी झगड़े वाली बात कर रही है तू. हम ऑलरेडी झगड़ों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ही रहते हैं हम. ठीक है फिलहाल. हाँ, तो stick to the one point. So just take it ना, take the mehendi. पाले ना होते ना तुम हमको तो बहुत बुरा काटते. Coming back to the point, I don't like a lot of mehendi. I like थोड़ा सा, हाँ ठीक है, शगन है. And my mom wanted me to apply mehendi till like पूरा लगा दो, पूरा बॉडी पे लगा दो मेहंदी. थाइस तक मेहंदी चाहिए. I'm exaggerating, but she really Mom, please, I'm sorry. But she really wanted me to apply till here, and I was of the opinion that I don't want to. I don't like it. Why is this a non-negotiable thing, Nah. And there was some drama where my mom cried over this, and I was like, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, इस पे रो ले यार. Why crying over a mehendi? They cry for the right reasons. Yeah, so I had to sit down and make her understand that I understand where are you coming from. I understand that तेरी बेटी की शादी है and you must be really excited for it and you want this for me, but I think somewhere I don't want this for me. I want something else for me. And it took her a long time to understand, but then obviously me being me, I like to keep my point, and I only applied till here. And I was so happy with it. Like I was glowing because I applied till here because it was what I wanted for my day. मतलब it was a special day. और let me tell you guys, मेहंदी का रंग जो पक्का कलर आया था, because मेरा प्यार इतना उमड़ के आ रहा था बिस्सू पे. बोला जाता है ना कि मेहंदी का रंग अगर शादी के दिन पे इतना अगर ग्लो करता है और इतना पक्का कलर हो जाता है कि वो निकलने का नाम नहीं लेता है. मतलब धुलाई रिंग की टिकिया से घिस लो आप, सर्फ एक्सेल लगा लो, हार्पिक लगा लो, निकलेगा नहीं. ऐसा हो गया था इसका कलर की निकलने का नाम नहीं ले रहा था. इतना प्यार उमड़ के आ रहा था. कैन यू इमेजिन इतना प्यार कोई किसी से कर सकता है? What? It was a lot of information. On my wedding, मेरे से ज्यादा दूसरों ने मेहंदी लगाई थी, and I was just happy looking at them. Yeah. कि आप लोग लगाओ, you enjoy, whoever my loved ones are, whoever are invited to the wedding, you guys enjoy, and I am enjoying with how much ever I have applied. The मेहंदी वाली बंदी जो एप्लीकेशन कर रही थी, she was also so shocked कि आप लगाते नहीं हो दीदी मेहंदी, आप पे कितना अच्छा लगता है. And I'm like, no, please, थोड़ा सा ही लगाओ, thank you so much. So I had to explain her also, justification देना पड़ता है on your choice. Because you were going against the traditional norms, na?
थोड़ा Yes. कुछ अपने लिए डिसाइड कर रही है, अपनी खुशी के लिए डिसाइड कर रही है, तो फॉर पीपल इट लुक लाइक ये थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है? It makes other people uncomfortable when you speak up for Ah. yourself. I feel that not a lot of brides are given an opportunity to speak for Or a herself. choice. But I feel if 1% also you do get inspired by this video and have some courage to, do something your way in your wedding for you, then you should. It's okay and it's allowed. My next 2 challenges were with Devesh. अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ये तो बहुत ही डीप जा रहा है गाइस. Are you ready to hear Devesh के कांड? No, you guys are not, right? नहीं सुनना ना आपको? The greenest flag ever. आज पर्दा खुलेगा. So the first one with Devesh was that I'll enact it for you. Okay now. My God, this acting also? Say wait. So I'm just happy in my own La La Land. Wow, मेरी शादी हो रही है. I'm just happy. Just a quick background. Earlier we had decided that we'll only do a wedding and a reception. We'll complete both the things in one day. First half for the wedding, second half for the reception. This was it. That was the plan. Then late night Devesh calls me up. He calls me and I'm like, hello. Wow, are you excited, Devesh? Devesh is like, बिस्सू, मैं क्या सोच रहा था? क्या हमको एक संगीत रखना चाहिए? And I'm like, that was not in the plan. So then I was like, ठीक है, okay, रख लेते हैं, कोई बात नहीं. Then next day comes. And I'm again like in my La La Land. Wow, this is so cool. I'm getting married. Never thought of it. क्या हम मेहंदी रख सकते हैं? So now let me explain. हल्दी and मेहंदी 2 इवेंट हम हमारे अपने घर पे करने वाले थे. हम साथ में नहीं करने वाले थे. To save cost, minimize it like the cost. And घर पे ही करने वाले थे अपने अपने like 4-3 लोगों के साथ, जो भी immediate family है उन्हीं के साथ. Then Devesh calls me, अब कि साथ में करते हैं हॉल में. And then I'm like, It looks like a festival, no? When you're celebrating, 2 families are getting together. तो थोड़ा इसलिए मैंने उसको पुश किया थोड़ा कि चल ना करते हैं ना, इतना कुछ ज्यादा जाएगा नहीं, थोड़ा 5-1 रुपया ज्यादा लग जाएगा, बट ठीक है, कर लेते हैं. so then I was like, okay, ठीक है. Then the next day comes. And again, I'm in a La La Land. Wow, never thought this day will come, but it's here. Then Devesh calls me up again. He's like, बिस्सू, हम हल्दी भी करते हैं क्या साथ में? I'm like, ठीक है, okay. Next day comes. He calls again. He's like, बिस्सू, मैं बारात लेके आऊँ क्या? And I'm like, ये कुछ लिस्ट बढ़ती नहीं जा रही है घर की. मतलब we have limited set of resources and we are already on a budget. So ठीक है, okay. अभी दिल है तो क्या ही बोल सकते हैं, दिल है या कुआं? पहले तो ये क्वेश्चन है, बट ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं. कुएं में कि कितना पानी निकालो खत्म ही नहीं होता ना, तो मेरा वैसा है. Wants, desires इतने हैं कि खत्म ही नहीं होता. कर दे खत्म. हाँ. ठीक है. Another day, next day. He calls me up again. मैं घोड़ी पे आऊँ क्या? I'm like, no, cancel, no, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा अब करके. Let me tell you guys, in the बारात देवेश ना लिटरली पूरे रास्ते ना गाड़ी में एसी में बैठ के आया, बिकॉज इट वाज अ मार्च वेडिंग. तो ये घोड़ी में वैसे भी नहीं आने वाला था बाहर. Oh my God, मैं 2 मिनट नहीं टिकता घोड़ी में, सच में. घोड़ी को गर्मी लग जाती है यार बेचारी की. ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइस, ये मुझे अभी, हमने ये लिखा भी नहीं था इन आवर पॉइंटर्स, मुझे अभी याद आया. Oh. Instant traumas, Devesh wanted an outdoor wedding. Oh yeah, shit. In March, he was fighting with me on this. हाँ. And I was like, do you think with the lehenga that I'm wearing and the makeup that I've applied, हाँ. an outdoor wedding is possible? 2 things, I put my foot down and I'm like, no, ना घोड़ी आएगी, ना outdoor wedding होगा, indoor होगा, AC में full blast में. That was so foolish of me to think कि outdoor wedding करनी है मार्च के महीने में, मतलब destination wedding type. Yeah. I was like, on the budget. Bro, don't get carried away with big fat Indian wedding, ये वो. Yeah. मैं बोला नहीं भाई. यहाँ पे families को हम बोल रहे थे no big fat Indian wedding. यहाँ पे देवेश को मुझे explain करना पड़ रहा था. हाँ, मतलब when जब ये जो बता रही कि मेरी ख्वाहिशें थोड़ी बढ़ती गई, हम थोड़ा हिसाब किताब पे बैठे थे विद करण एंड शोकी, तो हमें लग रहा था कि ये डूएबल लग रहा है. Probably new users might not Yeah. know. Karan and Shoki are Devesh's bhaiya and bhabhi Yeah. and very close to me. Yes, Yeah. very close to us also. When we were doing हिसाब किताब, तो हमें ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अब अगर मेरे घर पे मुझे ही अगर हल्दी और मेहंदी करनी है, इसके घर पे इसको हल्दी और मेहंदी करनी है, तो गिन के ऐसे
5-10 लोग ही हो रहे थे, तो मैंने बोला इनके 5-10 लोग उठा के, मेरे 5-10 लोग उठा के, क्यों ना 20-30 लोगों की वो एक हॉल में वेडिंग कर ले, ताकि इट लुक्स लाइक अ फेस्टिविटी, यू नो, एक सेलिब्रेशन सा लगता है कि यार इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेहंदी साइड में लग रही है, वहां पे हल्दियां लग रही है, वहां पे वो बच्चे नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक एक दूसरे पे गिरा रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ा होना चाहिए ना, एक लुक एंड फील आना चाहिए कि कुछ तो हो रहा है। हाँ, और फोटोग्राफी में फोटोज खींच रहे हैं एस्थेटिक वाले। After a lot of back and forth of this, we did a 2-day function. या एक डे फंक्शन से 2 दिन फंक्शन हो गया, 2 दिन फंक्शन पे आ गए हम, ठीक Yeah. है. So that was 2 challenges with Divesh. The third one, we planned Bali as our honeymoon destination, and Bali tickets are expensive, Yeah. and also more duration. I mean the time distance. ऑलमोस्ट 3.5 घंटा उधर 5 घंटा। हाँ वही तो है Yeah, ना, yeah, ज्यादा yeah. डिस्टेंस हुआ ना, या डिस्टेंस तो ज्यादा डिस्टेंस है, ज्यादा एक्सपेंसिव Direct फ्लाइट flights नहीं टिकट्स, है। ज्यादा एक्सपेंसिव फ्लाइट टिकट्स, ऑल ऑफ दैट, ठीक है. बाली इज व्हाट वी डिसाइडेड. Now we have our close set of friends who are with us since like last 10 years now. So in that group, one of our friend Akshat just sent up an image which was like Maldives का कोई तो image था, and it was like really cheap rates, like really cheap accommodation and everything. Akshat had written, I remember the exact line, कि guys अगर बाली सोच ही रहे हो तो Maldives जाके आ जाओ करके, क्योंकि ये cheap है. You won't believe तभी बाली से cheap ज्यादा Maldives था, in the pricing, in the flight price, in the stay price, everything. Yeah. Not the stay price, but the flight price at least. And flight में ही बहुत savings हो रही थी. Now I got fully sold. Like Maldives is slightly better than Bali. They both have their own good qualities, but Maldives is a little luxurious if you want. And so I got fully sold, and that was my first international trip ever. So I'm fully sold on Maldives, but he's not. And I'm like, but it's Maldives. He wanted to go Bali. He was like, I'll go Maldives when I want to go later in life. Yeah. I'm like, but the prices won't be the same. The prices are going to be sky roof. Right now we are getting in cheaper prices because of lockdown, because of COVID, because of restricted traveling. Then why not wasulo it? So I had to cry. Actually, I remember this. She was crying on the phone and trying to convince me so much, and I was kind of not able to understand that कि अगर एक लोकेशन अभी डिसाइड कर ही लिया तो क्यों करना है. For him, change is a little difficult. हाँ, थोड़ा वो टाइम पे चेंज बहुत डिफिकल्ट होता था कि अभी अगर कर ही लिया तो फिर क्या, अभी दूसरा क्यों चेंज करना है. आई हैव टू मेक अप माय माइंड, डिसाइड, अच्छा ये लोकेशन नहीं, अभी दूसरा लोकेशन है, उसके हिसाब से फिर सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी. So we stayed in a water villa sort of thing, which was on water. बहुत सही. And that costed us per night around 35,000. Today the rates are 1,00,000. Or more than 1,00,000. It was such a steal deal at that point of time. Yeah. Because of all the restrictions. That was my challenge to convince Divesh कि मुझे Maldives जाना है क्योंकि ये cheaper है, मुझे नहीं पता मैं कब जा सकती हूँ वापस. Yeah. Okay, so the list of challenges that I had, 3 challenges तो this one got for me. एक तो सबसे बड़ा challenge तो लोगों को बुलाने वाला ही था, उसको resolve करते करते तो मेरी जान ही निकल गई थी. And there are people who still don't talk to me, or whenever they meet, they just, you know, slide in those taunts like हमको तो शादी में तूने बुलाया नहीं था. And a lot of people, by the way, thought that I'm pregnant. इसीलिए इतने घाई में हश में किसी को बिना बुलाए मैंने शादी किया. A lot of those guys thought that is what मेरे कानों में पड़ा Who था. are those guys? Your society people? I mean, हाँ, a lot of people. Anyway, let's not go into the details of it. But a lot of people thought that, and now it's been 4 years, and बच्चा तो अब तक नहीं आया. आएगा भी नहीं. Yay! The final challenge that I faced was actually from his family. Usually now what happens is when the bride gets ready, there are siders booked, right? Main makeup artist bride को ready कर रही है, and दूसरी makeup artist घर वालों को ready कर रही है. Now I wanted to, again, like since we were on a budget, we had to allot money and very tight budgets we had. So I wanted to only do it for my and his also immediate family, just the immediate family. But there were relatives from his end who wanted to get it done. Extended families. From extended families, and I was of the opinion that no, I do not want to shell out more budget on makeup. I remember being hell bent that I don't want to pay for the extra people, for extra things, and I was just very adamant on that point. So that was again one of the challenge that we faced, and finally हमने immediate family को ही मेकअप किया था, बाकी लोग ने
अपना अपना देख लिया था. Now we come on to the challenges from Divesh's side because he brings a lot of drama in my life. So being in a सिंधी फैमिली इतने सारे चैलेंजेस होते हैं रिचुअल्स को लेके. बताता हूँ एक एक करके आपको. So सिंधियों में ना एक रिचुअल होता है जहाँ पर हम फलों की टोकरी या फिर कुछ भी महंगा आइटम होता है ना, उसको इतनी बड़ी टोकरी में जिलेटिन पेपर से सजा के उसमें महंगे महंगे फ्रूट्स या महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स देते हैं. और एक टोकरी नहीं होती, 5-6 टोकरी होती है. रिलेटिव को या जिसके साथ आप शादी कर रहे होते हो, ब्राइड टू बी की फैमिली को जाती है और आप लेन देन की बातें करते हो. ऐसा होता है कई बार, ऐसा नहीं भी होता है. बट मैंने जितना मेरे बचपन से अभी तक फैमिली में देखा है कि वो दिया ही जाता है इसलिए ताकि रिटर्न में कुछ मिल पाए. और ऐसा भी होता है कि सोने की चेन उनको देते हैं या कान की बाली सोने की, एवरीथिंग गोल्ड एक्सचेंज होता है कि एज अ शगुन माना जाता है कि बिकॉज वी आर गेटिंग मैरिड टू दिस फैमिली नाउ. अभी हमारा रिश्तेदारी फ्रेंडशिप इज टर्निंग इनटू रिश्तेदारी, तो उसको ऐसे रिचुअल के फॉर्म में वो देते हैं. तो दिस वाज बीइंग एनफोर्स्ड इन माय फैमिली कि ये तो देना ही पड़ेगा. आई वाज लाइक नो. एंड ऑल्सो इट्स कंडीशनल, मतलब अगर आपने दिया तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि Yes. सामने वाला भी मुझे देगा. कितना भी इट्स कंडीशनल. कोई भी बोल लो, अगर आप ये मन से नहीं भी जा रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो उसके मन में 1% दिमाग में रहेगा ही कि उसको कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन है. क्योंकि आप दे इसलिए रहे हो ताकि आपको सामने वाले से रिस्पेक्ट मिले. वो रिस्पेक्ट आपको वर्ड्स में नहीं चाहिए, काइंड में नहीं चाहिए. वो रिस्पेक्ट आपको मटेरियल थिंग्स में चाहिए कि आप कुछ अगर सोने की चेन भी दे रहे हो तो सामने वाला आपको सोने की वॉच तो दे कम से कम. तो दैट इज समथिंग दैट ये रिचुअल हमें ब्रेक करना था. वी डिडंट एक्सपेक्ट एनीवन कि इसकी फैमिली से मुझे कोई महंगा हेफ्टी गिफ्ट मिले या मेरी फैमिली से इसको गिफ्ट मिले, बिकॉज फिर वो फैमिली में अगर एक बार दो बार चालू हो जाती है देन इट नेवर स्टॉप्स. मतलब दिस वाज अ वेरी बिग थिंग टू डू Yeah. कि हमने कैंसिल किया लेन देन कि यहाँ से एक चीज भी यहाँ नहीं जाएगी ये फैमिली में, ये फैमिली में से एक चीज भी यहाँ नहीं जाएगी. Yeah. वी लिटरली कैंसल्ड ऑल लेन देन. इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू एक्सप्लेन, क्योंकि जितने ज्यादा रिलेटिव्स उनकी अपनी सोच और उनकी पर्सपेक्टिव होती है, वो अपनी टिप्पणियां देते रहते हैं. बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि बिकॉज वी आर एल्डर्स तो वी शुड हैव अ से इन योर वेडिंग. नेतागिरी तो सारे ही करते हाँ, हैं. नेतागिरी तो करनी हर है. फैमिली में होती है वो. तो वो सब हमने बोला कि बॉस ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी वांट टू डू अ वेरी सिंपल वेडिंग. हमको इसको बढ़ावा देना ही नहीं है. तो वी वर वेरी श्योर इन द स्टार्ट. दैट्स व्हेन उनको ऐसा लगा कि अरे इतना छोटा है, बगावत कर रहा है हमसे, हमने तो इतनी शादियां देखी है, तू क्या हमको ऐसा इतनी बोल रहा शादियां है. कराई है हमने इतनी शादियां. तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे दिल पे लग गया, या फिर उनको Ego. एज अ डिसरिस्पेक्ट लग गया कि हाउ कैन यू से दिस टू अस. द सोल पर्पस वाज वी कुड सी व्हाट कुड हैपन, व्हाट कुड गो रॉन्ग इफ वी अलाउ दिस थिंग टू हैपन. अगर ये आज जाने दिया ना तो ये कल सर पे बैठेंगे और प्रॉब्लम्स को न्योता देंगे, प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे. So basically we tried tackling all the difficult conversations beforehand. Let me just tell you that this also helped us to understand each other a lot and to be on the same page constantly, that we were choosing each other over everything. सेकेंड स्ट्रगल ये था कि फैमिली को मनाना कि मुझे अननोन लोग नहीं चाहिए शादी में. मेरी एक लिस्ट है, अगर हम बना रहे कि 100 से 120 लोगों को बुलाना है, तो आपके पास वो 60 लोगों का ही बैंडविड्थ है. तो देन हमारे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव जो आ रहे थे वेडिंग में, वो बोल रहे थे कि अरे हमारी फैमिली मिलके 60-70 लोगों की है, अब तो हमने दूसरे रिलेटिव्स को तो टच भी नहीं किया, टच बेस भी नहीं किया. तो हाउ कैन यू से कि 60 लोगों को बुलाना है, एटलीस्ट 200-300 लोगों को तो बुलाओ. अरे 200-300 क्या होता है, टोटल लोग नहीं आ रहे 200-300. तुमको तो आज 2-3 बसें निकालनी है क्या लोगों की इनवाइट्स की? नहीं है भाई, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. वी वांट टू कीप अ स्मॉल वेडिंग, एन इंटीमेट वेडिंग वेयर क्लोज पीपल आर इनवाइटेड, वेयर पीपल मैटर टू अस. Yeah. इतना हमने तय किया था कि ये होगा, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन, प्लीज हमारे हिसाब से चलो. And two things here. A, we wanted people who matter to us. Second is we really were on a budget. I mean, we are paying for the wedding. We have to take wise decisions and difficult decisions. एक हद के बाद तो ऐसा उनको लग ही रहा था कि बिकॉज उनकी नहीं चल रही है, बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट कि हाँ बिकॉज हमारे पैसे तो लग ही नहीं रहे, तो हम क्या ही बच्चों को फोर्स करें कि इनको बुलाओ, उनको That बुलाओ. was the goal. That was the goal, to make them somewhere That was the goal. just because we are spending, we want it in a certain way to happen, because we've seen marriages में tensions इतना होता है, awkwardness होती है relatives में, जब लेन देन की बातें होती है, जब आप किसी को, अगर मैंने इसकी फैमिली को नहीं बोला या इसको इन्फॉर्म नहीं किया लेना देना, तो imagine the awkwardness that she has to face with her family members. अब ये थोड़ी ना अपनी extended family कोई relative, मौसी मौसा, बुआ बुवी, तावा ताई को संभालते बैठी कि ये सब बातें मत करो. Instead पहले से ही पॉइंट बना लो कि ये सब नहीं होगा. Yeah.
लिस्ट ऑफ थिंग्स के साथ लेके बैठो कि दिस इज व्हाट यू डोंट नीड टू डू, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. अनदर चैलेंज वाज, अब हमारी शादी होने वाली है तो बिस्सू का आना जाना फ्रीक्वेंटली लगा रहता था, फंक्शंस में, फैमिली गैदरिंग्स में. अब ऐसा होता था कि मेरे रिलेटिव्स जो है वो सिंधी साइड से है, तो जब बिस्सू एक सेम रूम में होती है तो जानबूझकर वो सिंधी में बातें, कॉन्वर्जेशंस होती है मेरे साथ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड सिंधी एंड आई अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो, बिकॉज शी न्यू शी डजंट अंडरस्टैंड सिंधी, क्योंकि उसने सिंधी कभी बात ही नहीं किया है. तो जानबूझकर रिलेटिव्स मुझसे सिंधी में बात कर रहे हैं ये बोल के कि वो है ना इसलिए मैं सिंधी में बात कर रही हूँ, ऐसा मुझे सिंधी में बोलते थे. एंड आई एम लाइक, शी इज जस्ट हियर, सामने बैठी है, क्यों आप मतलब उसको ऐसा फील करा रहे हो कि आउटसाइडर क्यों फील करा रहे हो, ये तो अभी इनसाइडर होने वाली है, हो गई है ऑलमोस्ट, अभी तो नक्की हो गया सब कुछ, तो व्हाई वुड यू वांट टू यू नो make someone feel an outsider? It's a disrespect that you show to someone. And also I feel that Devesh was pretty clear that वो मेरी वाइफ है, उससे कुछ छुपेगा नहीं, हाँ हम मतलब एक है. So Yeah. whatever information you give him will come to me. eventually yes. Whatever information somebody gives me will go to him. It was as simple. We are Yeah. one. So there's nothing to hide as such, you know, from her. We are literally doing a love marriage. And अगर base ही ठीक नहीं है तो कैसे बढ़ेगा आगे, you know, life? Another challenge was that कि extended family में one of the family members की में divorce हो रखा था between the wife and husband. Basically मेरे चाचा का divorce हो गया था. My चाचा wanted to talk to his second wife and he came up to me and he said that Devesh, you have to call her also, and if you don't call her we will all not be going to be a part of your wedding. It was a kind of a deal breaker from his side, and I'm listening and he was drinking also, and everyone was there. My dad was there, Dadi also was there, my chacha was there, and I was just listening. I was not speaking because the other guy was drunk, so मैंने सुन लिया उसको जो भी बोलना था, और मैंने मेरा डिसीजन तभी बना लिया था कि rather they not be a part of my wedding. So I decided कि मैंने मॉम को बोल दिया कि मॉम ऐसा ऐसा है, मैंने डिसाइड किया है, जस्ट बिकॉज दे डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू माई लाइफ, रादर मी टेक दिस डिसीजन एंड नॉट इन्वाइट देम. इट्स ओके, उनको आना होगा आएंगे, मैं जाके किसी को इन्वाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट उनकी वाइफ को जानता ही नहीं. तो मेरे लिए उनकी जो पहली वाइफ है वो उनको बचपन से जानता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे पाला पोसा है, एज सिंपल एज दैट. तो आई वॉन्ट दैट पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ माई वेडिंग. अगर आपको बुलाना भी है तो आप उसको बोल दो और वो आ जाए, मैं क्यों सामने से जाऊं और इनवाइट करूं. Because family had so much politics, it was all boiling down on him to take a decision, which मतलब वाइफ खोटी कर रहा था. हाँ. I could see everything going wrong if I invite them in my wedding, and फुक्कट ड्रामा मुझे चाहिए ही नहीं था. I wanted drama free people in my wedding. So I made up that decision in that moment कि नहीं आएंगे ना तो चलेगा, मेरी अच्छी wedding जाएगी. तो मैंने डिसाइड कर दिया. अंदर द चैलेंज वाज कि जब मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं आपकी सेकंड वाइफ को इनवाइट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हर पर्सनली. इफ यू वांट टू कम टू माय वेडिंग, बी माय गेस्ट. So invite किया था. हाँ, He invite left किया the था. decision on him whether he wants to come or not. he didn't turn up to my function, so I understood that he might not turn up to my wedding also. So उनको देख के मेरे दूसरे रिलेटिव जो कि मेरी बुआ साइड के रिलेटिव है, मेरे कजन्स है दूर के, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि जस्ट बिकॉज these guys are not going to Devesh's wedding, तो we will also not turn up to his wedding. मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, just because those guys are not going, we will also not feel comfortable. अरे तेरे को तो कुछ है ही नहीं, तेरे को तो इनवाइट किया, we are good in terms, तुम तो आओ खाओ पियो शादी में मजे करो, ऐसा कुछ तो था ही नहीं. But they decided on their own. I was like, good for me. I mean ये इससे समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि मैं उसको मैटर करता हूँ, वो मुझे मैटर करते हैं ना, तो वो कुछ भी करके मेरी शादी में आएंगे. अगर वो नहीं आएगा तो समझ जाऊंगा मैं कि बॉस हमारा इतना रिलेशन है ही नहीं. फिर तो वो दूर से हाय हेलो या फिर कभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ जाए तो वैसा ही वाला रिश्ता हो गया जो आजकल इतना कॉमन हो गया है. That's also okay. That's also okay. That's Yeah. their choice. ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपको अगर आपकी क्लोज रिलेटिव भी है, अगर उनकी कोई आपकी थिंकिंग उनके साथ मैच नहीं हो रही थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ईगो मसाज दैट आई हैड टू डू विद देम कि बॉस आप आ जाओ बिकॉज आई वांट यू इन माय वेडिंग एंड यू मैटर टू मी. And they also showed me that they mattered to me also and I mattered to them also. Ego massage करना पड़ा because उनके extended family को घर पे जाके invite कराना था with all of the tokeries and all of the fool, all of designer, you know, gift देना था. And we were not pro this. हाँ.
and for that Divesh got a lot of emotional अत्याचार. मेरे को डिफिकल्ट हो रहा था. क्यों हो रहा था आई विल टेल यू. बिकॉज बचपन से अभी तक मैं वो चीज करते आ रहा था उनके लिए. हर एक फेस्टिवल में जाके पार्सल्स देना, गिफ्ट्स देना और उनसे आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग लेना. दिट वाज लाइक मेरे को सीखा सिखाया हुआ भेजते थे कि ये दिवेश तू जाएगा यहाँ पे, तुझे गिफ्ट देना है, तुझे यहाँ से ये स्टोर से ये सामान खरीदना है, तुझे ये गिफ्ट देना है, यू हैव टू सीक देयर ब्लेसिंग, यू हैव टू कम बैक, यू शुडंट ईट इन देयर होम. तो मैं बचपन से अभी तक करते आ रहा था. तो मेरी शादी के लिए भी मुझे वो टाइम पे ऐसा करना पड़ा कि मुझे जाना पड़ेगा उनके घर पे टू इनवाइट देम एंड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आई वाज डूइंग बचपन से अभी तक. तो वो चीज मुझे वापस रिपीट करनी पड़ी थी एंड आई वाजंट कंफर्टेबल डूइंग दैट, बट स्टिल आई वेंट अहेड एंड डिड दैट एंड आई वाज लाइक चल ओके, इतना मैं कर सकता हूँ, इसके आगे अभी मैं नहीं कर पाऊंगा. मतलब इट्स कमिंग टू समथिंग वेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद. So I was able to put my stand at some levels and I was not able to put my stand कि you have to choose your battle कि कहाँ पे किसको नहीं बुलाना है, किसको बुलाना है, किसका ईगो मसाज करना है, कोई वर्थ इट है, कोई नहीं वर्थ इट है, ये डिसाइड करना पड़ेगा. हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे. तो वो हार्ड कॉल्स लेने पड़े और मैंने लिए. अनदर चैलेंज, शादी की प्लानिंग से लेकर पूरे बुकिंग्स करने तक सारी अप एंड डाउन टोटल प्लानिंग वाज डन बाय करण एंड शोकी. बिकॉज वो उनका बहुत ज्यादा हेल्प था, बिकॉज उन्होंने अपनी शादी किस तरीके से की थी, तो दैट दे वर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू. To add here, a lot of things went wrong in their own wedding, and that gave them a learning key, and they were protective. They are protective about us, so that gave them a learning that ये इनकी शादी में नहीं होना चाहिए. ये बच्चे लोग खुशी से शादी करनी चाहिए. So they had that energy for us. They were fiercely protecting us from all the external traumas, all the external troubles that are coming our way. They also had a beautiful journey. Same family, you can check out their podcast link in the description below. But they were very much there for us and they guided us throughout the process. You know कि क्या मैटर करता है, क्या ट्रूली मैटर करता है आपकी शादी में. That created a lot of ruckus. they were taking the charge of helping around our wedding with bookings and everything. So जो बुजुर्ग हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के, उनको थोड़ा सा खट्टा लग गया, उनको थोड़ा सा खराब लग गया कि we being the बुजुर्ग people of the family, how can we not take charge of this wedding, how can we not do some rituals and how they are allowed to do this. उनको ऐसा लग रहा था हमने चारों ने एक पैठ बना लिया अपना and we are doing what we want and we are not allowing them to enter in our group. We were doing that. Yeah, but we were protective about ourselves. But it was a wise, sound calls that we were trying to take to protect our interest, to protect our wedding, our happiness, our peace. You know? So ये चीज भी काफी ज्यादा देखने मिल रही थी कि ये थोड़ा सा रॉन्ग साइड में लिया जा रहा है और they are not comfortable and encounters, बहुत awkward encounters हुए. मीठी शूरी टाइप टॉन्ट दिए गए मुझे और मेरे ब्रदर को भी कि अब तो आप इतने बड़े हो गए हो, आपको तो सब कुछ आता है, आपको तो घर संसार चलाने आता है, आपको तो हमारी ज़रूरत भी नहीं है. सो ऐसे सारे टॉन्ट्स अपनी शादी में मिल रहे थे एंड वी वर टेकिंग इट वेरी लाइटली बिकॉज वी डोंट वांटेड टू हैम्पर द मोमेंट. बिकॉज वो टाइम का ही है, मुझे पता है कि इसके बाद शायद मैं उनसे कभी मिलूंगा या शायद कभी उनके साथ एक स्माइल एक्सचेंज करूंगा. तो मुझे पता है कि ये अभी बोल रहा है, बोलने के लिए बोलो और इसको अवॉइड करो मिट्टी पाओ इसमें. पेशेंस लेवल तो इतना था बचपन से कि पूछो मत. So that was all the craziness, the chaos that we faced during our wedding. The whole point of this video was to probably send a message out there that please अटैक सब कुंफू करने लग गया. लिटरल अटैक और कुंफू करने लग गया. अटैक सम सो अटैक आपको सब साइड से आएंगे. सो लेट मी स्पीक. सो अटैक सब साइड से आएंगे, लड़की वालों के साइड से, लड़कों वालों के साइड से. यू जस्ट हैव टू मेक अ लिस्ट कि किसके साथ डील करना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है. वी डिड दैट एंड इट हेल्प्ड अस, थैंक्स टू करण शोकी अगेन, टू मेक अस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शिट मेरा वर्ड नहीं आ रहा है, वो कैबलरी को क्या हो गया मेरे. तो उन्होंने इतना हमें पहले से ही बताया था कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली, तो उसको इस तरीके से यू कैन टैकल. एट द एंड चैलेंजेस आएंगे, घबराना नहीं है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन होगा और मजा आएगा. मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट. नो ट्रूली व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्या बैटल्स आप चूज कर सकते हो, क्या डिफिकल्ट कॉल्स आप ले सकते हो. इट विल नॉट बी इजी बट चूज योर हार्ट. एंड दिस वीडियो कम्स टू एन एंड. इन द नेक्स्ट वीडियो अब ये सारे जो हमने चैलेंज किया है उसके बाद हमने फाइनली अचीव कर लिया है हमारे गोल्स की, हमको क्या करना है एंड हमारा बजट एज टू कितना हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है. द नेक्स्ट वीडियो इज अ डिटेल्ड
video of all the expenses that happened in our marriage, in our honeymoon, while renting a house, investment, saving, Emergency funds. emergency funds. So next video is all about हिसाब. हमने कहाँ पे क्या कितना spend किया, Yes. कितना invest किया, and कैसे हमने आगे बढ़ाया अपनी जिंदगी को. Yes. So yeah, that's about it. See you Yes. in the next one, and hope you liked this video. I hope it was very helpful for the audience family. जो अभी शादी के लिए प्लान कर रहे हैं या ये साल में शादी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या जो अभी 22-year-old भी है जो आगे जाके शादी करना चाहती है कभी ना कभी अपनी लाइफ में, उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है. सो सारी टारगेट ऑडियंस को हमने कैप्चर किया हुआ है. ऐसा कोई ऑडियंस नहीं जिसको कैप्चर नहीं किया. until unless you are 18-year-old, please Watch it with your mummy below Yes. 18. Comment your favorite part of the video. and share your experience in the comment कि आपने कभी ऐसा कोई struggle या challenges face किए अपनी मैरिज के टाइम पे. So thank you so much, and if you like this video, then you know what to do. Like, share, and subscribe.